دنیا ہزار رنگ سے میں ہوں آپ کا میزبان زاہد سومرو سلام عرض ہے دوستو. آج 30 مارچ سن 2026 اور دوپہر کا ٹائم اور اس وقت میں موجود ہوں کوٹ ادو کندیا سیکشن کی ایک ہسٹوریکل ریلوے اسٹیشن دریا خان پر. تو دوستو آج بکھیریں گے رنگ دریا خان کے حوالے سے. میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ دریا خان اس علاقے کی ایک بہت ہی ہسٹوریکل اور اہمیت والی اسٹیشن تھی، خاص طور پر فریٹ ایکشنز کے حوالے سے، گڈس کے حوالے سے. یہاں پر ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا، بہت بڑا کام تھا. تو سب چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی اس کی جغرافیائی حیثیت کے حوالے سے ایک اہمیت والا اسٹیشن. تو شہر کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور دریا خان کی وجہ تسمیہ کو بھی جانیں گے اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو لے چلوں گا دریا خان شہر. کوشش کروں گا کہ اہل علم اہل قلم دوست سے آپ کی ملاقات کرواؤں جہاں سے ہمیں ایکوریٹ معلومات مل سکے. تو یہ سارے سلسلے تبھی چلیں گے جب آپ دوستوں کا ساتھ جڑا رہے گا. تو آئیے چلتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں دریا خان کو. آئیے میرے ساتھ. جناب شہر سے آتے ہوئے یہ لک ہے دریا خان ریلوے اسٹیشن کا. زبردست زبردست زبردست. اب درمیان میں یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ صبح کی برسات ہے. صبح کوئی 5 بجے کے بعد بڑی ہی زوردار بارش تھی. سامنے ہے جی یہ شہر کی جانب سے انٹری. اس طرف شہر ہے دریا خان کا. شہر تو دونوں طرف ہے ماشاءاللہ. مین انٹرنس دریا خان. یہ ہے جناب اوپن ویٹنگ ہال. میرے بائیں جانب ٹکٹ گھر ہے جی اور یہ ہے کرایہ نامہ. کلور کوٹ 110، میاں والی 160. جبکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مہر ایکسپریس جب پرائیویٹائزیشن پہ تھی تو اس کا کرایہ یہاں سے میاں والی تک 400 روپے سے بھی زیادہ وصول کیا جاتا تھا. ریل کا کرایہ 160 ہے، جبکہ روڈ پہ جائیں گے تو پورا 1000 روپیہ لگتا ہے جی. تو اس سے آپ کمپیئر کر لیں کہ ریل کے کرائے متوسط اور غریب طبقے کے لیے کتنے کارآمد ہیں. یہ کچھ معلومات ہے اور آگے ایک دروازہ ہے جی، دفتر اسٹیشن ماسٹر. جی بھائی صاحب. جناب دریا خان ریلوے اسٹیشن پر یہ ایک کیا کہوں اس کو میں، کیا نام دوں اس چیز کو جی. تو کیونکہ نہ ابھی چٹھی آتی ہے نہ کوئی خط لکھتا ہے، مگر وہ دور بھی تھا جب انتظار ہوتا تھا کسی کی چٹھی کا کسی کے خط کا، اور پاتے ہی جس کو پہلے آنکھوں پہ رکھا جاتا تھا پھر کھولا جاتا تھا. مگر اب یہ تالا شاید کبھی کھلتا ہو یا اگر کھلتا بھی ہو تو اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہوگا، کیونکہ اب خط کا رواج نہیں ہے. اب ہم جو ہیں وہ سدھر گئے ہیں جی، ترقی کر گئے ہیں. اب ایک کلک پہ جی وہ سارا میسیجنگ ٹیکسٹ ہوتا ہے جی، فوٹوز بھی آ جاتے ہیں. تو اب یہ خط کا جو مزہ تھا، خط کا جو اپنا ایک اسٹرکچر تھا، اس سے ہم محروم ہیں. یہ اس کے ساتھ ہی یہ لیور اسٹرکچر ہے، فریم ہے. یہاں سے ہوم سگنلز کو آپریٹ کیا جاتا ہے جناب، اپ اور ڈاؤن. اور اس کے ساتھ ہی یہ انٹیمیشن بیل. جبکہ یہ اسٹرکچر پارسل گوڈاؤن تھا کسی وقت میں. بہترین سیٹ اپ کے ساتھ ریلوے اسٹیشن ہے، صاف ستھرا. حالانکہ یہاں پر اسٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے، شارٹیج ہے.
मगर फिर भी यहाँ पर स्टाफ ने जो है सफाई को भी मेंटेन रखा हुआ है। और साथ में ये देखिए आप स्टेशन के साथ ये कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, वाह जी वाह, बड़ा ही प्यारा स्टेशन। दरिया खान 2 ज़ुबानों उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखा हुआ ये जनाब पंजगराई एंड का प्लेटफॉर्म है। माशाल्लाह जी, यार्ड तो काफ़ी वसी है। आगे आप देख रहे हैं कि इसी लूप लाइन से एक ट्रैक जो है कर्व खाता हुआ साइडिंग की तरफ जा रहा है, मगर अब ये सारा सिस्टम बंद है। ज़ेरे इस्तेमाल सिर्फ 2 लाइनें हैं, ये है जी लूप लाइन इसकी और दरमियान में मेन लाइन, और यही 2 काम की हैं। बाकी आगे 3 रनिंग लाइंस और भी नज़र आ रही हैं जो कि अनफिट हैं। तो माजी में यहाँ काफ़ी हसल बसल रहती थी, क्योंकि यहाँ पर शुगर मिल की वजह से भी, और इसकी जो लक्कड़ है वो पूरी मुल्क में सप्लाई होती थी। उसके अलावा भी ज़राए अजनास के हवाले से बहुत ही एक रिच एरिया दरिया खान का। तो यहाँ पर काफ़ी फ्रेट एक्शंस होते थे, मगर अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। कि मेरे दाएं हाथ पर प्लेटफॉर्म पर ये आपको एक शानदार इमारत नज़र आ रही होगी, जिसको आज सुबह की बारिश ने बिल्कुल धो के साफ़ कर दिया है। तो इसके सामने जनाब ये काफ़ी दरख्त भी लगाए हुए हैं, काफ़ी नए नए पौधे भी नज़र आ रहे हैं जी। मगर ये है शानदार इमारत, ये 2nd क्लास दर्जा 2M का वेटिंग रूम है जी। आप इमारत का लुक देखिए, ब्रिटिश इरा का एक तोहफ़ा था जिसको हम संभाल नहीं सके। आप इसकी दीवारों की ज़रा स्ट्रक्चर देखें, अब भी ये बिल्कुल मज़बूत बुनियादों पर है। इसकी अगर केयर की जाती, हिफाजत की जाती तो 50 साल और ये चल सकता है। छत भी अच्छी हालत में है काफ़ी, और टिकट घर मर्दाना भी है, तो औरतों के लिए अलग काउंटर है बना हुआ। मगर बड़े अफसोस के साथ है कि इतने मज़बूत स्ट्रक्चर को भी हम संभाल नहीं सके, इतनी भी अहलियत हम में नहीं रही। और ये यहाँ से लुक है जी प्लेटफॉर्म का। जनाब ये दूसरे दर्जे का मुसाफिर खाना जो मैंने प्लेटफॉर्म से अभी आपको दिखाया है, तो अब मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आया हूँ, क्योंकि इमारत इतनी शानदार है कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं जी, इसका आगे का लुक भी दिखाते हैं कि असल जो एंट्रेंस है इसकी, जहाँ से मुसाफिर दाखिल होते थे, वो आपको दिखाई जा सके। तो यहाँ से मुलाहिज़ा कीजिए कैसा शानदार लुक है। अब इस तरफ का व्यू चेक करते हैं आगे चलकर। दोस्तों, प्लेटफॉर्म के साथ ही वसी और अरीज़ ये गुड साइडिंग जो आगे बल खाती हुई माशाल्लाह नज़र आ रही होगी आपको, और इसके साथ ही ये रेलवे मस्जिद, पीछे इसके रेलवे कॉलोनी भी है, क्वार्टर्स भी हैं, और ये रास्ता आगे शहर की तरफ निकलता है। दोस्तों, स्टेशन के सामने ही ये आबादी है। अब उसको इस्लाम नगर या मोहल्ला इस्लाम नगर कह लीजिए, मगर पार्टीशन से पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। मजहबी हम आहंगी का सबसे बड़ी जो अगर उम्दा मिसाल है तो दरिया खान में आकर मिलती है, जहाँ पर बिल्कुल साथ साथ
مندر بھی ہے تو مسجد بھی ہے تو گردوارہ بھی ہے ماشاءاللہ جی. مگر اب یہ جو گردوارے یا مندر وغیرہ یہ بند پڑے ہوئے ہیں. البتہ مسیحی برادری اب بھی یہاں پر کافی آباد ہے اور ان کے چرچ اب بھی استعمال میں ہے. اس طرف ہے جی پنج گرائیں اسٹیشن. دوستو اسٹیشن کے ساتھ ہی ملحق یہ ایک پرانا اسٹرکچر ہے, اب تو ابینڈنٹ ہے. گڈ سائڈنگ ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بنا ہوا ماضی کا ایک حصہ. دریائے سندھ کے نزدیک ہونے کا فائدہ یہ ہوا اس علاقے کو, یہ ہرا بھرا علاقہ تھا. یہاں سے زرعی اجناس اور لکڑ جو ہے بڑی تعداد میں ملک کے سب حصوں میں بھیجی جاتی تھی. اب بھی یہاں کی لکڑ منڈی پاکستان کی سب سے بڑی لکڑ منڈی کہلاتی ہے جی. تو یہ دریا خان کا یہ ماضی ہے ماشاءاللہ جی. اب ویران پڑا ہوا ہے جو کبھی شاد و آباد تھا, جہاں پر رونقیں تھی, سینکڑوں مزدور کام کرتے تھے. آج یہاں پر بالکل ویرانی کا عالم ہے. آپ اس اسٹرکچر کو دیکھیں کتنا پھیلا ہوا ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ماضی میں یہاں پر کتنی یہ جو ریل پیل ہوگی. واہ جی واہ, بہت ہی شاندار اسٹرکچر. جناب تو دریا خان جو کہ نہ صرف یہاں پر اقتصادی طور پر بلکہ تہذیبی اعتبار سے بھی جی انڈس سویلائزیشن سے اس کا جڑاؤ ہے, اور بہت ہی تاریخی اعتبار سے اس کی اہمیت اور قدامت ہے. تو آج ہم گھوم رہے ہیں دریا خان, اور اتنا بڑا یہ گڈس کا اسٹرکچر خال خال ہی نظر آتا ہے بہت کم اسٹیشنوں پہ, مگر اس سے لگتا ہے کہ دریا خان ماضی میں کافی پر رونق اسٹیشن تھا, کافی ارننگ والا اسٹیشن تھا. مگر اب وہ سارا جو فریٹ کا سسٹم ہے, آئٹم سے سب اب ختم ہے, اور یہاں پر صرف اب یہ 2 گاڑیاں بچی ہیں جی اپ ڈاؤن. ماشاءاللہ جی سامنے کافی درخت ہے, اور ان کے درمیان میں یہ بھی ایک ابینڈنٹ اسٹرکچر اب تو بن گیا ہے, مگر یہ کسی زمانے میں آفیسز کا حصہ تھا. اور یہاں پر پولیس چوکی بھی, ریلوے پولیس چوکی بھی تھی, مگر اب یہ بالکل بند کیا ہوا ہے جی, تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے. رسک ہے بہت, یہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. باقی یہاں کا ماحول دیکھیے, ذرا وائب چیک کیجئے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. کیا بات ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہاں کے اسٹاف کی کوششوں کو, جنہوں نے اس اسٹیشن کو ابھی تک ماشاءاللہ جی ایک باغ بستان بنا رکھا ہے. واہ جی واہ, بہت ہی پیارا منظر. جناب یہ نیمنگ بورڈ ہے جی, پہلے زمانے میں تو کوٹلہ جام تھا ریلوے اسٹیشن, اب وہ بند ہے تو ورکنگ ہوتی ہے بکھر سے. تو یہ بکھر اینڈ ہے. تو اس اینڈ سے یہ ہے یارڈ کا کچھ منظر. یہاں پر ایک تاریخی اسٹرکچر ہے بہت ہی خوبصورت, تو وہ آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. دوستو اس وقت میں آپ کو ایک یونیک اسٹرکچر پر لے آیا ہوں, یہ آپ ملاحظہ کیجئے. جناب یہ ایک کنواں تھا, اور اوپر آپ چرخیاں دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ بالکل پرانا اسٹرکچر برٹش ایرا کے وقت کا, اور یہاں پر بیلوں کو جوتا جاتا تھا, اور ان کی مدد سے
एक सर्कल बनता था जी, ये पानी ऊपर आता था और उनकी निगहदाश्त के लिए बाकायदा अमला मुकर्रर था। 4 अदद बैल थे, 2-2 की जोड़ी के साथ वो यहाँ पर काम करते थे जी पूरा दिन। तो ये पानी का बंदोबस्त बैलों की मदद से, इस स्ट्रक्चर की मदद से होता था। 80 की दहाई तक ये वर्किंग में था, बाद में इसको ख़त्म किया गया। दोस्तों, स्टेशन के अकब में ही ये अबेंडन क्वार्टर्स रेलवे कॉलोनी, अब खंडरात का मंजर है जी। दोस्तों, दरिया खान की हिस्ट्री की तलाश में हम निकले हैं जी। तारिक अजीज साहब मेरे स्टेशन मास्टर मेरे साथ हैं, मुझे छोड़ के आएंगे जी। एक बहरवा है जो तारीख़ पर काफ़ी दस्तरस रखते हैं, तो जा रहे हैं उनकी तरफ। आ गई जी हमारी मंजिल। मेरी जुस्तजू का सफ़र अभी जारी है और मैं स्टेशन से आ गया हूँ जी दरिया खान शहर में, और इसका सबब सिर्फ एक ही है कि आप दोस्तों तक बिल्कुल एक ऑथेंटिक मालूमात दरिया खान के हवाले से पहुँचा सकूँ। तो इस वजह से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। एक दोस्त है जी, अहले कलम है, अहले इल्म है, तो उनसे जानेंगे आज हम दरिया खान के हवाले से और कुछ बातें करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं, आपका तारुफ़ कराता हूँ और फिर दरिया खान के हवाले से कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले आप मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ़ कराएंगे। जी, मैं सलीम अवान हूँ जी, सहाफ़ी हूँ, लिखता रहता हूँ। आपके मेज़बान की तरह मैं भी तहकीकात में लगा रहता हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों की जुस्तजू में। तो आज सर मेरे पास दरिया खान से मुतल्लिक़ जानने हैं, तो मैं हाज़िर। बिल्कुल जनाब, आपको ज़हमत देंगे और मेरी ये कोशिश होती है कि अपने व्यूअर्स तक असल जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाऊँ, क्योंकि एक अमानत होती है। बिल्कुल ऐसे, एक अपने ऊपर एक वज़न महसूस करता हूँ। ऐसे ठीक है जी। ऐसे तो जहाँ भी आप जैसा कोई अहले इल्म दोस्त मिल जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है उससे मिलकर, उससे जानकर। तो आज आपके पास हम आए हैं जी। तो वजह तस्मिया दरिया खान की या थोड़ा सा बैकग्राउंड दरिया खान के हवाले से आप हमें बताइए। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये अमानत होती है, हम भी कोशिश करते हैं कि तहकीक करके जो निस्बतन करीब तरीन जो बात होती है वो पहुँचाइए। तारीख़ की चूँकि बातें होती हैं तो तारीख़ को हम खंगालते हैं, तारीख़ को सर्च करते हैं, तो जो करीब करीब वजूहात हैं, करीब करीब जो निस्बत है वजह तस्वीर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कहा जाता है कि अफ़गान लश्कर का सरबराह था दरिया खान मुग़ल, उसने टिवानों को शिकस्त दे के तो दरिया सिंध के किनारे इससे दरिया खान की बुनियाद रखी। नज़दीक की मैं बात करूं तो आपका ये दरिया खान जो है ये 1860 तक ज़िला लिया की तहसील रहा है। और साथ में ये भी आप जिक्र सुन लीजिए कि आज का जो ज़िला बकर है ये इस तहसील दरिया खान का हिस्सा था। एक निस्बत ये भी है कि 4 भाई थे, इस्माइल खान, गाजी खान, ये दरिया खान और बन्नू, ये अपने अपने कबीलों के सरबराह थे, तो इन्होंने अपने नाम से शहर बसाए हैं। अच्छा, दरिया बहता है तो इस बहते दरिया की वजह से भी लोग कहते हैं कि शायद इस शहर का नाम दरिया खान रख दिया गया है। एक बड़ी यूनिक चीज़ जो शायद बहुत कम किताबों में, हमने भी यकीनन किताबों से देखा, एक बड़ी यूनिक चीज़ जो आपको किताबों में कम मिलेगी, यहाँ पे एक मज़ार है, बुज़ुर्ग हैं बुढ़ाया सुल्तान, तो उनके मज़ार की वजह से, उनके यहाँ के रहने की वजह से इस शहर को तकिया फ़कीर भी कहा जाता है, तकिया रिहाइश को कह दिया जाता है, उस फ़कीर की रिहाइश। ये 3-4 वजूहात हैं, वजह तस्वीर 3-4 बयान की जाती हैं। ज़बरदस्त। तो रेलवे के हवाले से भी आपका स्टेशन पे भी आना जाना होता होगा, और माशाल्लाह आपने ख़ुद भी बचपन यहाँ गुजारा है, जवानी में आपने देखा है, तो कैसा था रेलवे स्टेशन अगर आज के माहौल से आप कंपेयर करें तो?
हाँ, रेलवे चूँकि अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे वैसा नहीं रहा है, तो रेलवे स्टेशन भी वैसा नहीं है। एक वक्त था कि रेलवे स्टेशन हमारी ऐसे समझे कि रेल के साथ साथ बहुत बड़ी हमारी सैरगाह होता था। यहाँ पे लोग शाम को आते थे, बैठते थे, जैसे लोग आज पार्कों में गप्पे लगाते हैं, यहाँ पे बैठ के वो गप्पे लगाते थे और रेल को देख के। रेल बहुत अच्छा ज़रिया सफ़र का भी है। और इस रेलवे स्टेशन की तारीख़ आप ख़ुद भी यकीनन बताएंगे कि ये क्या है। मैं मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि ये चूँकि केपी से टच करता है, सरहदी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे दरिया बहता था, आने जाने का रास्ता नहीं होता था, तो दूर दराज से लोग केपी जाने के लिए पहले दरिया खान रेलवे स्टेशन उतरते थे। इवन के जो फ़ौज की मतलब नकल हरकत है वो भी यहाँ पे आके उतरते, तो यहाँ पे से फिर रेलवे से उतर के दरिया के रास्ते से केपी में दाखिल हो जाता था। माशाल्लाह। तो सलीम साहब, एक दूसरा मैं एंगल ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि इस शहर के हवाले से मजहबी हम आहंगी का मैंने माहौल पढ़ा है हिस्ट्री में कि यहाँ पर हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे। तो वो कुछ आप बताएंगे तारीख़ के एतबार से वो जबानगत? बिल्कुल ऐसे बात है जी। अब ये आप 47 से पहले की बात करें तो उस वक्त हमें ये बताया जाता है, मैं तो यकीनन 47 में नहीं था, हमें बताया जाता है कि यहाँ पे हिंदू लोग, सिख लोग यहाँ पे रहते थे। और ये ज़िला बकरपुरे की बात करें तो क्रूरकोट, दरिया खान और हैदराबाद थलमनकेरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद हिंदुओं की थी और बड़ी मोहब्बत से लोग रहते थे। आज भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे अब भी क्रिश्चियन बिरादरी जो ईसाई बिरादरी अब भी रहते हैं। और फिर आप अपने इस्लाम की बात करें तो यहाँ पे लोग बड़े मोहब्बत से रहते हैं, मस्जिद के इख्तलाफात बिल्कुल नहीं रखते, बहुत मोहब्बत से यहाँ पे लोग रहते हैं। जब हम दूसरे मज़हब को इज़्ज़त और अहमियत दे सकते हैं तो अपने तो फिर हमारे अपने। वाह जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपका वक्त लिया, बहुत मेहरबानी। बहुत। दोस्तों, सलीम ऐवान साहब से मिलने के लिए मैं दरिया खान शहर में इस वक्त कलमा चौक पर मौजूद हूँ, जिसको पहले हाशमी चौक भी कहा जाता था। तो सलीम साहब से जानते हैं कि यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, फिर से ये जो रास्ता है ऊपर की तरफ कहाँ जाता है? ये रास्ता डेर इसमाइल खान को निकलता है जी। केपी के का शहर है। हम दरिया खान वाले पंजाब और केपी की सरहद पे रहते हैं। ये रोड सीधा इसे लिंक डेर इसमाइल खान रोड कहते हैं। ये डेर इसमाइल खान सही। और ये इस जानिब सीधा ऊपर की जानिब ये क्रूरकोट का रास्ता है। क्रूरकोट हमारे ऐसे कह लें कि बक्कर का इस साइड पे आखिरी शहर है। अच्छा। और अगर मैं स्टेशन साइड कह लूँ ये सीधा ऊपर रोड जाता है? हाँ, तो ये बक्कर की जानिब, बक्कर की जानिब जो ज़िली सदर मुकाम है। यानी इस चौक से तीन तरफ के रास्ते, तीन तरफ रास्ता नहीं, थोड़ा सा आगे जाके तो आप मियांवारी की तरफ भी निकल सकते हैं। सही। तो दोस्तों वापस चलते हैं। एक दाऊद खेल चली हुई है तो उसका एक्शन भी कैप्चर करते हैं, या हमारे लिए बोनस एक्शन होगा। तो चलते हैं स्टेशन की तरफ। दोस्तों, आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है इसको ज़रा गौर से देखिए। और ये मेरी अब सामने आ गया जी दरिया खान रेलवे स्टेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है तारीख़ में ये सराय का काम देता था जी। मुसाफिर आते थे, यहाँ पर रहते थे, क्योंकि दूर दूर तक रोड वगैरह का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस वक्त। अगर था भी तो वो ऊँट और बैलगाड़ियों का सफ़र था। उस ज़माने में सबसे तेज़ तरीन जो सफ़र था वो रेल का था। ये आपके स्टीम के इंजन थे। एक स्ट्रक्चर आगे तक की तरफ वो भी डैमेज है, मगर वो भी सराय के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो दरिया खान अपनी अहमियत के लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल एक स्टेशन। तो आज आप देख रहे हैं दरिया खान के रंग। ये जो सामने स्ट्रक्चर है बिल्कुल कंडम है जनाब। ये सामने बखर एंड पर दरख्तों में घिरी हुई ये शुगर मिल जो अक्टूबर 1964 में कायम हुई थी और अभी तक रवां दवा है। और मैंने जैसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, माजी में शुगर के हवाले से गन्ना या चीनी रेल के ज़रिए से चलती थी, मगर अब सब कुछ ख़त्म हो गया। मगर फिर भी मैं इसको खुशकिस्मती समझता हूँ कि आज एक फ्रेट एक्शन मुझे दरिया खान रेलवे स्टेशन पर मिल रहा है। सामने है जी अब की दाऊद खेल। टाइम हुआ है शाम को 4:50 और पास करेगी जी यहाँ से अब की दाऊद खेल।
जनाब ये कराची से चली हुई दाऊद खेल दरिया खान से पास हो गई है। चलते स्टेशन की तरफ वो इंतज़ार करते हैं अपनी गाड़ी का। दोस्तों थल एक्सप्रेस में हमारी वापसी है, तो इंशाल्लाह उसका अराइवल आपको दिखाएंगे। उसके बाद एंड करेंगे इस व्लॉग का। 5:45 बजे का टाइम और 1:30 डाउन थल एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है दरिया खान रेलवे स्टेशन पर। मैं ऑफ साइड खड़ा हूँ, गाड़ी के प्लेटफॉर्म के ऑफ साइड हूँ। आगे आप गाड़ी का रक्श मुलाहिजा फरमा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रश प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी साइट, किसी नई मंजिल, किसी नई स्टेशन पर होगी आपसे मुलाकात। तो गाड़ी के अराइवल को महसूस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।